So simply we are discussing the bond of love. So in this chapter we are discussing, हम लोग ये discuss कर रहे हैं that how there will be friendship between humans and animals. जो author है, he said that I will start this story from Bruno, the tame bear. तो ये कहानी मैं किससे शुरू करूँगा? ब्रूनो से शुरू करूँगा. And then he told us that how he got the Bruno, कि ब्रूनो मिला कहाँ से था. तो उसने बताया just how many years ago? 2 years. 2 years ago. One day he was passing through the sugarcane field in a village nearby Mysore. What the people were doing there? Shooting down the wild pig. So some of the pig had been shot down, while some of they have escaped, ran away. And when the author thought that everything was over, at the same time, what did he see? A black sloth bear came out from the sugarcane field in that sunlight. Now, though I don't want to shoot an animal without any reason, but unfortunate for the bear that one of my friend didn't think like that. As soon as he saw the bear, at once he shot it. And when the bear fell down, I saw. और क्या देखा था मैंने? That the black hair of his back were moving. ऐसा वैसे move कर रहे हो. And then I saw what it. और तभी देखा ये था क्या? कहते actually it was not the hair, but it was the baby girl. उस भालू का बच्चा था छोटा सा, who were taking ride on मदर्स बैक, जो अपनी माँ की पीठ पर बैठ के क्या कर रहा था? राइड कर रहा था. व्हेन इट हैज बीन शॉट डाउन, तभी इसको क्या किया गया? गोली मार दिया गया. एंड नाउ द कब जो बच्चा था, इट स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड हिज मदर, अपनी माँ के आसपास घूमने लगा. तो कहता दैट आई फेल्ट पिटी ऑन हिम, मुझे उसके ऊपर बहुत दया आ रही थी. एंड नाउ आई रैन टू कैच हिम, मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा. But is scurried off into the sugarcane field. वो sugarcane field में भाग गया. So I followed along with my friends, दोस्तों के साथ पीछा किया. And by the scruff of his neck, है ना, neck के पास जो स्किन थी, उससे मैंने उसे पकड़ दिया. I packed it in a gunny bag. Yes, gunny bag में पैक किया. Came back to बैंगलोर. मेरा घर कहाँ था? बैंगलोर में था. बैंगलोर में वापस आया. एंड आई प्रेजेंटेड दिस टू माई वाइफ, और वो भी क्या? ड्यूली प्रेजेंटेड, जैसे गिफ्ट दिया जाता है मैंने वैसे दे दिया. एट वंस माई वाइफ कैप्ट अ कलर्ड रिबन ऑन इट्स नेक, गले में क्या हुआ? एक कलर्ड रिबन बांध दिया. एंड वेर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द कप वॉज अ बॉय, सी क्रिश्चियन इट ब्रूनो. नाम क्या रख दिया गया? ब्रूनो. And in the beginning, Bruno started drinking milk through the bottle. But pretty soon he started eating and drinking everything. और वो कहता है everything was the right word, because he ate porridge of any ingredient, vegetables, nuts, meat, और especially पोर्क का मीट का. एंड व्हाट नॉट, क्या कुछ नहीं कहा, सब कुछ खाया जाता. पीने की बात की जाए तो मिल्क, बटर, लेमन वाटर, एरेटेड वाटर, जूस, बियर, वाइन, एवरीथिंग. जो कहता है एनीथिंग लिक्विड वो पी जाता था, एंड एनीथिंग सॉलिड वो खा जाता था. एंड थ्रू आउट द डे ही रिमेन फ्री, पूरे दिन फ्री रहता था, वो खेलता था अलॉन्ग विथ 2 Alsatian dogs and teenage children. किराएदार के बच्चे थे, उनके साथ खेलता था. He came to the kitchen, came to the bed, और ये करता रहता. कहता one day I brought, और क्या लेके आया था मैं? Barium carbonate to kill
Rats and mice. Yeah? In my library. So Bruno entered into the library and he ate that poison. उसने जहर को खा लिया और जहर खाने के बाद क्या हुआ? Paralysis. He couldn't stand on his feet. वो चल भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. But anyhow he came to my wife. Wife told me and I understood. मैं समझ गया क्या हुआ था. I came to the doctor at once. दौड़कर मैं डॉक्टर के पास आया. And I told him that my Tambir has taken barium carbonate. So he has taken out his book और book से देखा barium carbonate symptoms, paralysis, medicine, injection of this. तो जल्दी से आया. सबसे पहले कितनी एंटीडोट दी गई थी? 10 cc. लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ. Then another 10 cc was injected. फिर से एक और इंजेक्शन. Now after half an hour he was well and after that he take a huge feed. बहुत ज़्यादा खाना खाया और हम लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे क्या कह रहा है, व्हाट अ बैरियम कार्बोनेट फॉर मी. अरे मेरा क्या बिगाड़ पाएगा ये बैरियम कार्बोनेट. अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड. तो पैराग्राफ नंबर 10 तक हमने किया हुआ था. आज हम लोगों को यहाँ से देखना है. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil. पैराग्राफ नंबर 11. Got it? Yes sir. ऑनलाइनर मिल गया बेटा सबको? चलिए देखें. Yes sir. तो कहता अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल. क्योंकि आदत थी जो खाने वाला होता था खा जाता था, पीने वाला होता था पी जाता था. तो एक बार तो ऐसे खाने के लिए क्या मिला? जहर मिला तो जहर ही खा गया. कहता अनदर टाइम ही गॉट 1 गैलन ऑफ इंजन ऑयल. एक बार ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द ईस्टर्न बेकर एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. जैसे नहीं पुराने जबान की सर्विस होती है, मोटरसाइकिल की सर्विस कराते, कार की सर्विस कराते, तो इंजन ऑयल जो मोबिल जिसको आप बोलते हैं वो निकलता. तो कहता 1 गैलन, एक कट्टिया भर के मैंने इंजन ऑयल अपने घर पे रखा हुआ था. किस लिए रखी था? एज अ वेपन अगेंस्ट द टर्माइट्स. टर्माइट्स मतलब दीमक. मेरे घर में बहुत दीमक होती थी तो मैं 1 गैलन इंजन ऑयल लाया तो उसको रखे था कि जहाँ होगा वहाँ लगा दूंगा. लेकिन एक दिन क्या हुआ? ब्रूनो एंटर्ड इनटू दैट रूम. वो उस रूम में घुस गया एंड ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट. और बहुत सारा इंजन ऑयल पी गया. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर. लेकिन इससे उसके ऊपर फर्क कुछ नहीं पड़ा. वो बहुत सारा इंजन ऑयल पी गया लेकिन जहर खाने से तो बीमार हुआ था. इस बार कुछ भी नहीं हुआ उसे. The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. In this way many months passed. बहुत सारे महीने गुजर गए. And in these months Bruno had developed in size. He became broader, huge than when he had come. जब आया था छोटा सा था लेकिन अब उसके कंपैरिजन बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा हो गया था. He had equaled the Alsatian in the height. वो इतना लंबा हो गया था कि अगर हाइट की बात की जाए तो कितना बड़ा था? Alsatian dog थे उतना बड़ा हो गया था. And had even outgrown them. लंबाई में उनके बराबर था. And outgrown them. outgrown का मतलब उनसे भी ज़्यादा मोटा है ना. ग्रो उनसे ज़्यादा कर गया था, उससे ज़्यादा मोटा हो गया था, उनके जितना लंबा हो गया था. बट वॉज जस्ट एज स्वीट. लेकिन अभी भी कितना स्वीट था? जितना पहले था उतना ही स्वीट अभी भी था. जस्ट एज मिस्चीवियस. जितना शैतान पहले था उतना ही शैतान अभी भी था. जस्ट एज प्लेफुल. पहले जितना प्लेफुल था, जैसे खेलता था, आज भी वैसे ही खेलता था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. और सबसे बड़ी बात, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. फॉन्ड ऑफ का मतलब हाँ शौकीन, यहाँ लगाव. वो हम सबको बहुत चाहता था, हम सबसे उसका बहुत ही लगाव था. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ. और सबसे ज़्यादा वो किसे प्यार करता था? कहता सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ को प्यार करता था वो. एंड सी लव्ड हिम टू. और वो ही केवल मेरी वाइफ को प्यार नहीं करता था, जो मेरी वाइफ थी वो भी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी. ये होता ना कि जिस जानवर को आप जितना ज़्यादा प्यार करेंगे जानवर आपको भी उतना ही ज़्यादा करेगा.
तो वो मेरी वाइफ को प्यार करता था और मेरी वाइफ उसे बहुत प्यार करती थी। एंड शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, एंड नाउ माय वाइफ चेंज हिज नेम आल्सो, नाम भी बदल दिया। पहले नाम क्या रखा गया था? ब्रूनो। अब वो ब्रूनो से क्या हो गए? बाबा हो गए। और बाबा का a हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। और अपने यहाँ बाबा किसको बोलते हैं? छोटे बच्चे को ही बोला है। अपने यहाँ तो नहीं, महाराष्ट्र साइड में सिर्फ बाबा है ना, तो छोटे बच्चे को बोलते हैं। तो वो कहता है कि हिंदुस्तानी वर्ड है तो उसका नाम भी बाबा रख दिया गया। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और उसे कुछ ट्रिक करनी भी सीख ली थी बच्चों के जैसे। एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Suppose ब्रूनो है वहाँ पे और उससे कहा जाता था बाबा रेसल, तो बाबा तुरंत तैयार आ जाते थे और जो भी आता था तुरंत उससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। और जैसे कहा था बाबा बॉक्स, तो बॉक्स से मतलब बॉक्सिंग, तो बाबा तुरंत तैयार, हाँ कौन आ रहा है, तो बॉक्सिंग शुरू कर देता था। तो कहता उसने कुछ ट्रिक्स सीख ली थी। और जब जानवर ऐसा करता है सबको, जैसे छोटे बच्चे होते ना, वो कुछ करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और वही अब आप करने लगो तो रोना ही पड़ जाएगा, यही है ना। वही कहता है कि अगर उससे कमांड किया जाता था बाबा रेसलिंग करो, तो रेसलिंग टंबल, जो भी सामने आता था उसी से लड़ने लगता था। वो बॉक्सिंग के लिए कहा, जो भी आए तुरंत उससे बॉक्सिंग करने लगता था। Gave him a stick and say बाबा होल्ड गन एंड पॉइंटेड द स्टिक एट यू। और कभी कभी जैसे स्टिक दे दो उसे, एक डंडा दे दिया, उसका बाबा होल्ड गन, तो तुरंत जैसे गन लेके खड़े होते वैसे वो गन को पकड़ के खड़ा हो जाता था। ये भी उसका एक ट्रिक था। और क्या था? एंड ही asked him बाबा where is the baby, and he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in the straw bed. और कभी कभी उससे क्या, उससे कहा बाबा where is the baby, बच्चा कहाँ है, तो तुरंत एक लकड़ी का छोटा सा लट्ठा था वो अपने छिपा के रखता था। तुरंत वो लेके आता था, उसको अपने गोद में लेके क्रैडल करने लगता था। क्रैडल होता है झूला झुलाने, ऐसे बच्चे को नहीं ऐसे लेके झुलाते हैं, तो तुरंत वो लकड़ी का लट्ठा यहाँ रख के और ऐसे करके क्रैडल करने लगता था। ये है बच्चा। तो ये सारी उसने ट्रिक्स थी जो सारी उसने सीख ली थी। But because of the teenage children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. लेकिन पहले तो छोटा तो नहीं था। So because of the teenage children, ये कहीं किराएदार के बच्चों को ये नुकसान ना पहुंचा दे। So now he was chained in most of the time. ये ज़्यादातर टाइम कैसे रखा जाता था? चेन मतलब चेन में बांध के रखा जाने लगा। जब छोटा था तो फ्री पूरे दिन घूमता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था, इसीलिए क्या था, उसे चेन में बांध के रखा जाता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore, and now he was quite grown up. बड़ा हो गया था। भाई शेर जैसे है या जंगली जानवर पाल लिया ठीक है, लेकिन अब बड़े हो गए, पता नहीं कब क्या कर दे, ये कोई जानता है क्या। So I, even my sons and even my friends, we all advised my wife, हम सब ने अपनी वाइफ को कहा that now Bruno या बाबा grown up too much, अब बाबा बहुत बड़ा हो गया, so it should be better, अच्छा ये होगा if बाबा was given to the Jew at मैसूर में जू है, हमें इसे जू में दे देना चाहिए। He was getting too big to keep at home. He was getting too big to keep at home मतलब he was so big that we cannot keep it at home. क्योंकि अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब हम इसको घर में नहीं रख सकते हैं। After some weeks of such advice, she at least consented. After weeks of such advice, एक बार में तो मानी नहीं, कई सप्ताह गुजर गए, डेली हम लोग यही उसे करते थे, लेकिन कई सप्ताह बाद वन डे सी कंसेंटेड। कंसेंटेड मतलब एग्री, एक दो से कहा ठीक है भाई, नहीं मानते आप लोग तो भेज दीजिए। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of Jew. Hastily and before she could change her mind, जैसा नहीं आप अपने पापा से कुछ मांग रहे हो
पापा ये करना है या ये खरीदना है, बहुत दिन से मांग रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं। फिर एक दिन पापा का ठीक है कर लो, तो आप क्या करेंगे, इतनी जल्दी करेंगे वो क्यों कहीं फिर से माइंड चेंज ना हो जाए, फिर मना कर दे जल्दी कर लो। तो ये हुआ, जैसे उससे कहा ठीक है, तो हेस्टली बहुत जल्दी से, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले वो अपना माइंड फिर से चेंज करे, नहीं नहीं मुझे नहीं भेजना, वो फिर से माइंड से एट वंस दे हैव रिटन अ लेटर टू द क्यूरेटर ऑफ जू। क्यूरेटर ऑफ जू मतलब इंचार्ज ऑफ जू, जो मैसूर के जू का इंचार्ज था, तुरंत उन्होंने एक लेटर लिखा उसको। उस लेटर में क्या लिखा, डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि हमारे पास क्या है, वी हैव अ टेम बियर, पालतू भालू। वेदर यू वांटेड अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या अपने जू के कलेक्शन के लिए उसे टेम बियर चाहिए, पालतू भालू चाहिए। ही रिप्लाइड यस, और वहाँ से जो रिप्लाई था, आई गॉट द रिप्लाई इन अफर्मेशन, इन पॉजिटिव। तो उस क्यूरेटर ने क्या कहा, हाँ मुझे चाहिए, यस दीजिए। और केवल यस ही नहीं आया वहाँ से, द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, और जू से क्या आ गया, लॉरी एक गाड़ी, और गाड़ी में क्या रखा हुआ था, एक केज, और उसमें गाड़ी वो सब आ गई। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, क्योंकि कितनी दूर था, 87 बेंगलोर से मैसूर 87 माइल्स था। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उस केज में पैक करके उस लॉरी में रख के भेज दिया गया। अब जब बाबा चला गया, सो नाउ वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, क्योंकि घर में जो पेट एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, पैरट हो, मोस्टली अब ये वही डॉग ज़्यादा मोस्टली होता है, लेकिन उससे भी क्या होता है कि इमोशनल अटैचमेंट होता है, बिल्कुल मेंबर के जैसे। तो जब वो चला गया तो कहता वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब के सब बाबा को बहुत मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक बात ये भी थी, नाउ वी वर रिलीव्ड, वी वर रिलैक्स ऑल्सो, हम बहुत ही रिलैक्स भी फील करते थे। क्योंकि पहले क्या लगता था, कहीं कुछ करना नहीं, किसी को पंजे ही ना मार दे, किसी को दांत ना मार दे। अब हम रिलैक्स थे, मिस तो कर रहे थे लेकिन अब हम रिलैक्स थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो इतनी परेशान थी कि उसे कंसोल ही नहीं किया जा सकता, कंसोल सांत्वना नहीं दी जा सकती, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। शी वेप्ट एंड फ्रैटेड, और क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वही करती थी उसे, दैट्स वाई शी यूज्ड टू वेप, घंटों रोती रहती थी। शी फ्रैटेड, फ्रैटेड मतलब चिड़चिड़ी हो गई थी, इरिटेट होने लगी थी, रोती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग एंड शी वॉज सो मच सैड, शी वॉज सो मच अपसेट, इतनी दुखी और परेशान थी दैट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुडंट ईट एनीथिंग, कि पहले शुरुआती कुछ दिनों में तो उसने कुछ भी खाया ही नहीं। Then she wrote a number of letters to the curator, और उसके बाद उसने क्या करा, she started writing the letters to the curator of the zoo। फिर उसने उस क्यूरेटर को लेटर लिखना शुरू कर दिया, और लेटर में वो क्या करती थी, हाउ वॉज बाबा, हमेशा उसमें यही पूछती थी मेरा बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाई, और वहाँ से भी क्यूरेटर वापस रिप्लाई भेजता था, वेल अच्छा है बट फ्रैटिंग, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, वो भी फ्रैटिंग कर रहा है, वो भी चिड़चिड़ा हो गया है। ही रिफ्यूजेज फूड, और वो भी खाना नहीं खा रहा है। तो दोनों ही की कंडीशन लगभग एक जैसी थी, दोनों ही बहुत दुखी थे। आफ्टर दैट, तो पहले तो वो लेटर लिखती रही, आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, और उसके बाद क्या होता था, वेन एवर एनी फ्रेंड ऑफ ऑथर वॉज गोइंग टू मैसूर, जब भी ऑथर का कोई दोस्त मैसूर जा रहा होता था, सो सी रिक्वेस्टेड है, उससे क्या रिक्वेस्ट करती थी, प्लीज़ गो टू जू ऑल्सो, आप जू भी होके आना, देख के आना मेरा बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड, और जो फ्रेंड्स वहाँ से आते थे, दे रिपोर्टेड, दे टोल्ड हर दैट ही वॉज वेल, और बताते थे कि कैसा है वो, अच्छा है तो अच्छा, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, बस क्या है अब बहुत ही कमज़ोर हो गया है, बहुत ही दुखी रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रैटिंग, और वो बताते थे कि जितने भी कीपर्स हैं वहाँ के जू के, जितने भी
गार्ड है वो सब क्या कहते हैं, दैट ही वॉज फ्रेटिंग, कि वो क्या कर रहा है, फ्रेट कर रहा है। फ्रेट का मतलब जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है कि बच्चा जैसे पापा से या दादी बाबा से बहुत अटैच है और जब उनसे दूर हो जाता है तो बीमार हो जाता है ना, तो बोले वो उसको फ्रेटिंग एक रियल वर्ड बोलते हैं। तो यही था, बोले वो फ्रेट कर रहा है। For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. And in this way, how many months passed? 3 months. And for 3 months, anyhow, I could restrain my wife to go to Mysore. मतलब कैसे भी करके मैं अपनी वाइफ को मैसूर जाने से रोके रहा। वो कह रही थी मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन 3 महीने तक तो मैं कैसे भी करके उसे मना के रखा, मैंने नहीं जाने दिया। बट देन शी सैड वन डे, लेकिन 3 महीने बाद एक दिन उसने क्या कहा, आई मस्ट सी बाबा, अब मुझे बाबा को देखना ही है। ईदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। कभी कभी नहीं, या तो आप कर दो, नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे। जस्ट लाइक संतोष यादव, नहीं पढ़ा रहे हम खुद जाके एडमिशन ले लेंगे, पैसा नहीं दोगे हम खुद कमा लेंगे। तो मजबूरी में आदमी चलो भाई। तो ये उसने कहा 3 महीने तक तो कहता मुझसे मनाए रहे, बट आफ्टर 3 months वन डे माई वाइफ सेड दैट आई मस्ट सी बाबा, कि अब मुझे बाबा को देखना ही है। इधर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम ले चलो कार से, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। और अगर आप नहीं ले जा सकते ना तो बसें तो चलती हैं, ट्रेन भी चलती, मैं बस से या ट्रेन से खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन मैं देख लूँगी ज़रूर। सो आई टुक हर बाई कार, ले तो मैं समझ गया कि अब वो मानेगी नहीं, तो फिर मैं उसे एक दिन कार से लेकर गए। फ्रेंड्स हैड कंजक्चर्ड that the bear would not recognize her. Friends had conjectured, conjectured मतलब speculated, guess करना, सोचना। दोस्तों को ये लग रहा था that the bear would not recognize her, कि 3 महीने हो गए, 3 महीने में बियर भूल गया होगा, उसे पहचान थोड़ा ना पाएगा। I had thought so too, और ऑथर क्या कहता है, I had thought so too मतलब मैं भी ऐसे ही सोचता था। कैसा सोचता था कि बियर उसे नहीं पहचान पाएगा। तो मेरे दोस्तों को भी लग रहा था कि बियर उसे नहीं पहचान पाएगा, मुझे भी लग रहा था कि बियर उसे नहीं पहचान पाएगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर, लेकिन हुआ क्या, व्हेन वी केम टू द जू, जब हम जू में आए, माई वाइफ वॉज स्टिल अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम द केज, अभी मेरी वाइफ बाबा के पिंजरे से कुछ दूरी पर ही थी। तभी बाबा ने क्या किया, बाबा ने मेरी वाइफ को देख लिया, रिकॉग्नाइज और पहचान लिया। ही होल्ड विथ हैप्पीनेस, और खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। शी रैन अप टू हिम, मेरी वाइफ भी दौड़ के उसके पास गई। पैटेड हम थ्रू द बार्स, क्योंकि पिंजरे के अंदर था तो बाहर जो सलाखें थी, सलाखों को पीछे ही से बैठ के उसका सर थपथपा रही थी। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और बाबा तो इतना खुश था कि खुशी प्रदर्शित करने के लिए क्या कर रहा था, अपने सर पर बार बार खड़ा हो जा रहा था, इतना खुश था वो। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, एंड इन दिस वे हाउ मेनी आवर्स पास, 3 घंटे गुजर गए। बट माई वाइफ डिडंट लीव द केज, मेरी वाइफ उस केज से हटी नहीं, वहीं बैठी थी, और ड्रोन बाबा भी वहीं बैठा था। शी गेव हिम टी, अब मेरी वाइफ ने उसे खिलाना पिलाना शुरू करा। शी गेव हिम टी, सबसे पहले क्या दिया उसे, टी दी, चाय दी। देन लेमनेड, नींबू पानी दिया, केक दिया, आइसक्रीम दिया, एंड व्हाट नॉट। एंड व्हाट नॉट मतलब क्या कुछ नहीं दिया, वे सब कुछ जो था बहुत कुछ खिलाया उसको। देन क्लोजिंग टाइम केम, एंड नाउ इट वाज द टाइम ऑफ क्लोजिंग द जू, अब जू के बंद होने का समय आ गया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें छोड़कर कहाँ आना था, फिर से बेंगलोर आना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, और अब जब मेरी वाइफ वहाँ तरह से क्राइड बिटरली, बहुत तेजी से रो रही थी। बाबा क्राइड बिटरली, नॉट ओनली माई वाइफ वॉज क्राइंग बट बाबा वॉज ऑल्सो क्राइंग, मेरी वाइफ भी रो रही थी, बाबा भी रो रहा था। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, यहाँ के जो हार्डेंड क्यूरेटर थे, मतलब जो बहुत ही पत्थर दिल वाले जो गार्ड थे और जो कीपर्स थे, दे इवन फेल्ट डिप्रेस, वो भी बेचारे दुखी थे, निराश थे।
कहते वो तो सब निराश थी, दुखी थी। एज फॉर मी, अगर आप मेरी बात करोगे, सो आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वाज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अब क्या होने वाला है, और जो होने वाला था उसको फेस करने के लिए मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। और होने वाला क्या था, एक्चुअली मुझे पता था, नाउ माई वाइफ वुड से, मेरी पत्नी अब मुझसे क्या कहेगी, मुझे मेरा बाबा वापस चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे होगा, तो मैं उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब यहीं तक आज रखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको देखिए डिस्कस करते हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। हु सेज दिस? ऑथर। हु डू हिम एंड हर रेफर टू? हिम और हर का मतलब क्या है? यस, सब राइट। या यहाँ भी हिम स्टैंड्स फॉर नॉट ऑथर, बी है। आई गॉट हिम, हिम स्टैंड्स फॉर ऑथर एंड हर स्टैंड्स फॉर ऑथर्स वाइफ। What is the incident referred to here? Incident? Yes, right, Samrat. Incident मतलब the accident how by which he got the Bruno, वहाँ से वो. He stood on his head in delight. Who does he refer to? Baba Bruno. Why was he delighted? क्यों खुश था? Because he saw his mistress after a huge gap of 3 months. 3 महीने बाद वो अपनी मालकिन को देख रहा था, to whom he loved very much. Where we all missed him greatly, but in a sense we were relieved. Who does we all stands for? Author and his family members. Who did they miss? Bruno. Why did they nevertheless feel relieved? Relieved क्यों feel कर रहे थे? Because now no fear left, because Bruno had gone. फिर उसके बाद on 2 occasions Bruno ate drank something that should not be eaten. What happened to him on these 2 occasions? तो एक तो वो बैरियम कार्बोनेट वाला और गैलन वाला वो है, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी कल करेंगे।